Okay, so today we will discuss part 2, chapter number 6, Weathering the Storm in Ersama. Okay, already all the introduction and everything I have given you yesterday, and from where I stopped, I would like to start from there. So then let us begin. So, as I mentioned to you, the lesson name is Weathering the Storm in a Ashrama. Okay, let's start. So, we have discussed about this incident. Prashant was in a Ashrama, and while he was in there, so he faced with the cyclone, and after 2 days he started to walk for his village, and during the journey of his village, what he faced, everything we have discussed, and now we will discuss that. So after reaching of the village, what happened there? Okay, after reaching the village, what happened there? So जैसे वो अपने गांव में पहुंच गया, among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. जैसे वो गांव में पहुंच गया और गांव में पहुंचने के बाद वो यहाँ पे सबसे पहले अपने मैटरनल ग्रैंड मदर को वो मिलता है, तो जो कि वीक विथ हंगर, जो भूख से कमज़ोर हो गई थी. शी रश टू हिम, हर हैंड्स outstretched, her eyes brimming. It was a miracle they had long given him up for dead. तो ये एक मिराकल है, क्योंकि बुजुर्ग लोग यहाँ पे बच गई, और वास्तव में ये एक मिराकल ही कहा जा सकता है. Quickly, word spread and his extended family gathered around him. और जैसे और ये बात सबको फैल गया कि प्रशांत आ गया, तो उसके घर के जो सदस्य हैं वो धीरे धीरे सभी क्या होने लगे, वहाँ पे इकट्ठा होने लगे. एंड hunged him tight in relief. Prashant annexiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncle and aunt, they all seemed to be there. तो धीरे धीरे उस रिलीफ कैंप में उसके ब्रदर, सिस्टर और सभी जो है वहाँ पे क्या होने लगे, उसको दिखने लगे, सब इकट्ठा होने लगे. तो उसके बाद by the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grief over himself. He ascended a deadly grief, sitting upon the 2,500 strong crowd in the shelter. वो जिस शेल्टर में था उसमें लगभग 2,500 लोग वहाँ पे थे. 86 lives were lost in the village. लगभग 86 जो जीवन जो है वो क्या हो चुका है, गांव के लोग मर चुके हैं. ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे. और तकरीबन इतने से घर जो है, 96 घर जो है वो बह गया है. इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर. अब ये चौथा दिन है शेल्टर में रहना. सो फार they had survived on a green coconut, but there was too few to go ground such a tumult of people. तो कुछ कच्चे नारियल के पेड़ थे वहाँ पे, और उस कच्चे नारियल के पेड़ से और नारियल तोड़ तोड़ के लोग खा रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए सफिशेंट नहीं था. फिर उसके बाद प्रशांत क्या करता है, प्रशांत ऑल of 19 years decided to step in as leader of the village if no one else did. तो इसी प्रकार से विलेज का लीडर के साथ संपर्क करने के लिए यहाँ जितने भी मतलब लड़के थे वो सभी को वो मतलब समझाता है. फिर उसके बाद he organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again
to part with his rice। तो यहाँ पे जो एक मर्चेंट है, व्यापारी है, वो एक झुंड को बनाता है और बनाने के बाद उस मर्चेंट को जाकर के थोड़ा प्रेशराइज करता है कि किसी भी तरह से जो चावल है वो लोगों को दे, ताकि लोग भूखे नहीं रहे और खाएं। This time he delegation. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding water with the flood for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from the fallen trees were uh, gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice। तो मर्चेंट से थोड़ा बहुत चावल मिल जाता है। मिलने के बाद जो सूखे मुखे लकड़ी जो है, हालांकि वहाँ जो है मतलब परिस्थिति सही नहीं था और भीगे भगा सा था, लेकिन जो भी कच्चा हो सूखा जो लकड़ी मिल गया उसको लोगों ने जलाया और धीरे धीरे ये आग जलता रहा, उसी में उन्होंने चावल को बनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days the survivor at the cyclone shelter were able to fill their bellies। तो यह जो 4 दिनों में जो शेल्टर्स वहाँ पे थे, और 4 दिन के बाद क्या होता है कि उनको थोड़ा अपने पेट भरने का मौका मिलता है। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcass, and to tend to the wounds and fracture of the many who had been injured। फिर उसके बाद वो एक टीम को तैयार करता है, एक टीम को ऑर्गेनाइज करता है कि ये टीम क्या करेगी, साफ सफाई का ध्यान रखेगी शेल्टर में। फिर जो वॉमिटिंग होना, यूरिन किया होना, ये सभी चीज़ों को, और जो डेड बॉडीज वगैरह जो इधर उधर है, चाहे इंसान का हो जानवर का हो, वो सभी को साफ़ सुथरा करना। क्योंकि साफ़ सुथरा अगर नहीं रहेगा तो फिर बीमारी और भी बढ़ जाएगा। जितने लोग भी बचे हुए हैं वो लोग भी और परेशानी में आ जाएंगे। यही था एक कारण। फिर उसके बाद वो और क्या करते हैं, जो जख्मी लोग हैं, जो इंजर्ड पर्सन है, उनको सेवा करने के लिए भी वो उन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप को बना देता है। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels। It then did not return। 5th डे में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है, कुछ फूड पैकेट को वो ऊपर से डाल देता है नीचे, डालने के बाद फिर रिटर्न नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी और एम्प्टी अटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से जो यूथ लड़के हैं और ये आए और खुले मैदान में और इस तरह से और ऊपर की तरफ देख कर के सो गए, और उनके पेट के ऊपर खाली बर्तन था, ताकि हेलीकॉप्टर उनको देख सके और देखने के बाद क्या कर सके कि भोजन वस्तु जो है वो उनके लिए डाल सके। So utensil the shelter, then they deputed the children to lie in the sand or left by the water around the shelter which utensil on their stomach। फिर जैसे मैंने कहा, जो लड़के हैं वो मतलब आर्टेंसिल्स को अपने पेट के ऊपर रख करके वो सोए हुए रहे, ताकि एक कम्युनिकेट हो जाए। जो भी हेलीकॉप्टर उसी पास में से होकर के जाएगा, वो हेलीकॉप्टर क्या करेगा कि म्यूट में रहो बच्चों, आप अनम्यूट कर देते हो। ओके, तो हेलीकॉप्टर जैसे उसी के पास होकर के जाएगा, और ताकि हेलीकॉप्टर में जो भी है उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ ज़रूरी है। The message got through। After that the helicopter made a regular round of the shelter
और जैसे ये जो सिस्टम, ये जो तरीका को वहाँ पे किया गया, तो इसी के चलते हेलीकॉप्टर को अब समझ में आ गया कि यहाँ पे ज़रूरी है, और वो रेगुलर आता रहा और अपना एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स को वो वहाँ पे देता रहा। फिर उसके बाद प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। तो प्रशांत ने देखा कि बहुत से बच्चे जो है अब वो अनाथ हो गए। सो ही बोट देम टुगेदर एंड पुट अप पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। फिर इस अनाथ बच्चों को वो इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद उनके लिए एक अलग से शेल्टर को बनाता है, और साथ ही साथ वुमेन्स वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम व्हाइल द मैन secured food and materials for the shelter। तो महिलाओं को बच्चों को देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, और उसके साथ तो पुरुष लोग जो है वो खाना बनाने में या फिर और भी दूसरे मटेरियल्स को इकट्ठा करने में वो लग जाते हैं। As a week passed, Prashant was quick to recognize that the women and the children were sinking deeper and deeper in their grief। एक हफ्ता गुजर जाता है, एक हफ्ता गुजरने के बाद प्रशांत देखता है कि ये जो लोग हैं और धीरे धीरे दुख के सदमे में आ जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, ही persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO and for the children he organized sports event। तो NGO के द्वारा खाना बनाने का जो कार्य है, उसी कार्य में महिलाओं को वो क्या कर देता है, लगा देता है, और साथ ही साथ जो बच्चे थे उन बच्चों को थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स इवेंट, गेम वगैरह ये सभी खेलने कूदने में व्यस्त कर देता है। He himself loved to play cricket and so he organized cricket match for the children। वो क्रिकेट खेल पसंद करता था, इसलिए वो एक क्रिकेट टीम का भी ऑर्गेनाइज करता है। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and the children to pick up their broken piece of their life। तो प्रशांत ये महिलाओं को, विधवा महिला को, बच्चों को, उन सभी को जो उनके जो टूटा हुआ हालत है उसको सुधारने के लिए, उनको चंचल करने के लिए ये और कई टीम को लगा देता है। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज। विधवा महिलाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूशन खोले गए। हाउएवर this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up with a love and uh, widows would suffer from स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस। लेकिन जैसा भी है, ये जो वहाँ रहेंगे, चाहे शेल्टर में या विधवा आश्रम में रहेंगे, तो भी ये इस तरह से इतना केयर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। तो प्रशांत कहता है कि जो ऑर्फन्स थे उनको रीसेटल करना है उनकी अपनी कम्युनिटी में, पॉसिबली इन ए न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विथ अडल्ट केयर। तो यहाँ पे और जो दूसरे महिला है, अडल्ट है, वो भी क्या करे, इन बच्चों को केयर करे। इट इज 6 months आफ्टर devastation of the super cyclone. This time Prashant wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain। इस तरह से 6 महीने लग जाता है, और प्रशांत जो है उसके पास अपने दर्द को महसूस करने के लिए या अपनी दर्द के बारे में चिंता करने के लिए उसके पास कोई मतलब समय ही नहीं था, और वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हिज हैंडसम youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। तो केवल प्रशांत ही एक सहारा था उनके लिए, जिन्होंने इस डार्केस्ट
और ग्रीफ मोमेंट में आकर के लोगों को सेवा किया और लोगों के लिए एक अच्छा काम किया। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना या कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, may God bless you, have a good day।